اس صوبہ بیچ میں جو ساتھی کھڑے ہیں ان سے دوبارہ ریکویسٹ کروں اسی فٹ پاتھ پہ بیٹھ جاؤ اسی فٹ پاتھ پہ بیٹھ جاؤ زمین پہ بیٹھ جاؤ بیچ میں جو ساتھی کھڑے ہیں وہ بیٹھے جلدی بیٹھے اسی فٹ پاتھ پہ بیٹھ جاؤ سب بیٹھے جو ساتھی ڈیوٹوں پہ وہ بھی بیٹھے سب بیٹھے اسی فٹ پاتھ پہ بیٹھے میرے ساتھیوں بلوچستان کے لوگوں آج نوجوان ہاتھوں میں بلوچستان کی ایک نوجوان ڈگریاں لے کر پھر رہا ہے اس کو روزگار نہیں ہے ہر طرف محرومی مایوسی ہے ان تمام چیزوں کو دیکھتے دیکھتے ہماری کئی نسلیں بوڑھی ہو گئیں قبروں میں چلی گئیں ہر سیاسی جماعت ہر پارٹی آ کر یہاں پر وعدے کرتی ہے لیکن آج تک بلوچستان کے حالات صحیح ہونے کے بجائے ہر دن کے گزرنے کے ساتھ ساتھ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں کیا وجہ ہے آج پورے پاکستان میں ہر جگہ نئے پروجیکٹس کی بات ہے ہر جگہ ترقی کی بات ہے ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے نیا ہو رہا ہوتا ہے لیکن بلوچستان سے ہر طرف سے مایوسی اور ہر طرف سے تکلیف کی خبر آتی ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں میری ماں بہنوں میرے بزرگوں نوجوانوں کیا ہم نے ایم پی ایس نہیں بنائے ہیں کیا ہم نے ایم این ایس نہیں بنائے ہیں کیا ہمارے پاس وزیر اعلیٰ نہیں ہے ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب کوئی ایک عہدہ خالی ہو لیکن ان عہدوں پہ بیٹھنے والے لوگ انہوں نے جو وعدے کیے ان وعدوں پہ سے پھر گئے وہ نہیں آئے آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس بلوچستان اسمبلی میں ایک رات میں ساری وفاداری بدل جاتی ہے ایک رات میں پورے کے پورے ایم پی اے پورے کے پورے اسمبلی کے لوگ صبح ہونے سے پہلے اپنی پوری کی پوری وفاداری چینج کر دیتے ہیں کیوں ہمیں یہ سوچنا اور اس سچ کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا ہم کسی پر الزام لگا دیں ہم فلاں پر الزام لگا دیں ہم ریاست پر الزام لگا دیں ہم اداروں پر الزام لگا دیں اس بلوچستان کے لوگوں نے اپنے خون سے اپنے پسینے سے اپنے نمائندے اپنے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والوں کے خلاف چوکیدار بنا کر اسمبلیوں میں بھیجا ہے کیا وجہ ہے کہ پوری بلوچستان کی اسمبلی ایک رات میں وفاداری چینج کر دیتی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ ہے مسائل کی جڑ اور پھر یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے اگلے الیکشن میں دوبارہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ اتنے پسماندہ ہو گئے لوگ اتنے غریب ہو گئے کہ ان سرداروں کا ان جاگیرداروں کا ان وڈیروں کا ان بڑے بڑے پولیٹیشین کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے ایک غریب آدمی ایک غریب بلوچستان کا شخص ایک غریب بلوچستان کا پاکستانی اپنے بچوں کے پیٹ کی 2 وقت کی روٹی کے چکر میں
परेशान है, वो कैसे इन बड़े बड़े सरदारों का मुकाबला करेगा, सामने खड़ा होगा, वो मजबूर है। लेकिन मैं रियासत से पाकिस्तान चलाने वालों से पूछता हूं, आप तो मजबूर नहीं है, आप रियासत के लोगों, पाकिस्तान के हुक्मरानों, रियासत के तमाम जिम्मेदारों, मैं आपको मुखातिब होकर कहना चाहता हूं, आपने इन सरदारों से इल्हाक किया, हमेशा आपने इन सरदारों को वोट दिया, आपने इन सरदारों से, इन सियासतदानों से डील की है आपको, और फिर इन सरदारों ने, इन सियासतदानों ने आपसे सारे ओहदे लिए हैं, सारी पोस्टें ली हैं, हर ओहदा एंजॉय किया है, वजीर बने हैं, वजीर आला बने हैं, एमपी एमएलए बने हैं, और फिर जब ये ओहदा चलता है तो इन्हीं मासूम नौजवानों को रियासत के खिलाफ लाकर खड़ा करते हैं कि रियासत हमें हुकूक नहीं दे रही। आपने इन लोगों ने अपने हकूक की रखवाली के लिए इन नुमाइंदों को चुना था, अपनी बदकारियां, अपने आप को बेचना, अपनी जमीन फरोशी का सारा बोझ रियासत के ऊपर डाल दिया जाता है। मैं रियासत के नुमाइंदों को कहता हूं, मैं रियासत वालों से कहता हूं कि खुदा के वास्ते बलूचिस्तान के सरदारों से, बलूचिस्तान के सियासतदानों को लूट में लेने के बजाय बलूचिस्तान के गरीब आवाम से डील करें, बलूचिस्तान के मजदूर से डील करें, बलूचिस्तान के पिछे हुए तबके से डील करें, उनसे उनको डायरेक्ट हक की हुक्मरानी दीजिए, उनको वसाइल के, उनके लोकल वसाइल पर कंट्रोल दीजिए। इन लोगों से डील, ये 2% मराठ याफ्ता तबके से डील करने के बजाय, इनको ऑन बोर्ड लेने के बजाय गरीब, किसी गांव का, किसी गोद का, किसी शहर के मजदूर गरीब, बलूचिस्तान के बलोची से, पख्तून से, हजारे के रहने वालों से, और जितनी भी कौमियतें यहाँ पर आबाद हैं, उनसे, उस गरीब लोगों से, आवाम से डायरेक्ट डील कीजिए, उन तक हक की हुक्मरानी पहुंचाइए, और उनसे डील, उनसे हक हुक्मरानी पहुंचाने का कोई और तरीका नहीं है दुनिया भर में, सिवाय इस बात के कि मुकामी हुकूमतों को मजबूत कीजिए, मुकामी हुकूमतों को इख्तियार दीजिए, मुकामी नुमाइंदों को लीडर बनने दीजिए। जो मुकामी आदमी है उसको उसके पानी का, के इंतजाम का इख्तियार और पैसा होना चाहिए। जो मुकामी आदमी है उसको उसके स्कूल का इख्तियार और पैसा उसके पास होना चाहिए। जो मुकामी आदमी है उसको उसकी तालीम का, उसके अस्पताल का, उसकी दवाओं का पैसा और इख्तियार होना चाहिए, उसकी सड़कों का इख्तियार और पैसा होना चाहिए, उसके बच्चों के लिए पार्कों का इख्तियार और पैसा होना चाहिए, और वो वहां पर मालिक बने। वो किसी सरदार को नहीं होना चाहिए, वो किसी जागीरदार वडेरे पैसे वाले को नहीं होना चाहिए, वो किसी इलाके के गरीब यूनियन काउंसिल और उसके काउंसिलरों को होना चाहिए, और वो बलूचिस्तान के आवाम है। रियासत ये काम करे, खुदा की कसम इन्हीं में से लीडर बनेंगे। जब ये लीडर फिर जाकर असेंबली में पहुंचेंगे, सूबाई और कौमी असेंबली में, तो एक रात में अपनी वफादारियां नहीं बदलेंगे, एक रात में अपने आप को नहीं बेचेंगे। ये काम अगर कोई कहता है कि नहीं हो सकता, तो पाक सरजमीन पार्टी बलूचिस्तान के एक चप्पे में इख्तियार ले जाकर दिखाएगी इंशाअल्लाह ताला। बलूचिस्तान के एक गांव, एक कस्बे को, एक डिस्ट्रिक्ट के, एक गलियों के, गांव, पहाड़ों तक जाकर इख्तियारात इंशाअल्लाह ताला देगी। हम अपने साथ कोई सरदार खान लेकर नहीं आए, हमारे बच्चे हमारे पास सियासत नहीं करेंगे, हमारे बच्चे हमारे खानदान वाले एमएलए एमपी वजीर नहीं बनेंगे। बलूचिस्तान के एक नौजवान को, बलूचिस्तान के पढ़े लिखे नौजवान को, बलूचिस्तान के मजदूर को, बलूचिस्तान के रहने वाले एक गरीब मुतवस्सित तबके के लोगों को हक हुक्मरानी दिए बगैर बलूचिस्तान में अमन नहीं आ सकता, बलूचिस्तान सुकून से नहीं रह सकता, और जब तक बलूचिस्तान सुकून से नहीं है, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता।
پاکستان کے حکمرانوں، اے پاکستان کے حکمرانوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ کلبھوشن یادیو اس کو انڈیا نے بلوچستان کا اور سندھ کا ٹارگٹ دے کر دہشت گردی کے لیے کیوں بھیجا؟ اس کو پنجاب کیوں نہیں بھیجا؟ کیا پنجاب کے پاکستانی میرے بہن بھائی زیادہ پاکستانی ہے؟ کیا بلوچستان کے لوگ کم پاکستانی ہیں؟ اس لیے کلبھوشن یادیو بلوچستان میں اور سندھ میں مارا گیا؟ نہیں نہیں نہیں، جتنا پنجاب کے رہنے والے میری مائیں بہنیں بیٹیاں جوان پاکستانی ہیں، اسی طرح سے بلوچستان کے رہنے والے غیور بلوچی اور یہاں کے رہنے والے بلوچستان کا ایک ایک شخص پختون بلوچ ہر انسان اسی طرح سے پاکستانی ہے جس طرح سے کسی اور صوبے کے لوگ پاکستانی ہیں۔ وجہ انڈیا اس لیے کلبھوشن یادیو کو بلوچستان میں اتار رہا ہے، سندھ کا ٹارگٹ دے رہا ہے کہ یہاں پر محرومیاں زیادہ ہیں، پنجاب میں محرومیاں کم ہیں، یہاں پر مسائل زیادہ ہیں، پنجاب میں مسائل کم ہیں، ان محرومیوں کی وجہ سے بلوچستان کا ٹارگٹ دے کر انڈیا اپنے ایجنٹ اتار رہا ہے۔ اے پاکستان چلانے والوں، جب تک یہ محرومیاں رہیں گی دشمن ہم پر حملہ کرتا رہے گا، دشمن ہم پر ہمارے نوجوانوں کو ورغلاتا رہے گا۔ اے پاکستان چلانے والوں، میرے بلوچستان کے بھائیوں کی زندگیوں میں سکون لے کر آؤ، میری ماں بہن بیٹیوں کی زندگی میں سکون لے کر آؤ۔ جہاں سے جانور پانی پیتے ہیں وہاں سے میری ماں بہن بیٹیاں سینکڑوں میل دور سے جو پانی آ رہا ہے اس کو جمع کر کے اس پانی کو جہاں سے جانور پیتے ہیں وہاں سے ہمارا بلوچستان کا ہماری ماں بہن بیٹیاں پانی بھر کے لے کر آتی اور پانی پیتی ہیں۔ جب تک یہ محرومی رہے گی، جب تک یہ مسائل رہیں گے، یقین جانو دشمن ہم پر حملہ کرتا رہے گا۔ آپ یہ مسائل ختم کر دیں، آپ یہ پاکستان کا جو خزانہ بلوچستان کے نام پر خرچ ہو رہا ہے وہ صرف چند لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے۔ عوام کی نمائندگی لوکل سطح پر عوام کو نمائندگی دو، عوام کو اختیار دو، مقامی حکومتوں کو کہیں دنیا میں اگر ہونا چاہیے مقامی حکومتوں کا نظام اسٹرانگ مضبوط تو وہ بلوچستان میں ہونا چاہیے۔ یہ آپ کر لو گے، کوئی کلبھوشن یادیو آ کر اپنا کام نہیں کر پائے گا، کسی کوئی نوجوان اس صوبے کا ہتھیار نہیں اٹھائے گا، اور پاکستان امن چین اور بلوچستان امن اور چین اور سکون کا گہوارہ بنے گا۔ میں بلوچستان کے نوجوانوں سے جو ناراض ہیں میں ان سے مخاطب ہو کر میں کہنا چاہتا ہوں، اے میرے بلوچستان کے نوجوانوں، یہ انڈیا ہمارا دوست نہیں ہے۔ اے بلوچستان کے نوجوانوں، یہ دشمن ممالک اور دشمن ملک کی ایجنسیاں ہماری دوست نہیں ہیں، یہ تمہاری دوست نہیں ہے، یہ پاکستان اور تمہاری دشمن ہے اور تمہاری سب سے زیادہ دشمن ہے۔ میں مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھ کے لوگوں کو یہ تجربہ ہے، ہمیں بھی کراچی میں کسی نے 35 سالوں تک ریاست کے خلاف کھڑا رکھا، نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہتھیار دیے، رو کا ایجنٹ بنایا اور خود بنا وہ رو کا ایجنٹ۔ لیکن آج آپ دیکھو 35 سال گزرنے کے باوجود کراچی جیسا شہر تباہ برباد ہوا ہے، معاہدے تباہ برباد ہوا ہے۔ جن لوگوں نے ان کی بات مانی وہ تباہ برباد ہوئے ہیں، کوئی سکھ نہیں ملا، کوئی شہر کو ترقی نہیں ملی، نوجوان ہزاروں نوجوان قبر کے اندر چلے گئے، ہزاروں مائیں بچوں سے محروم ہو گئیں، ہزاروں بہنیں بیوہ ہو گئیں، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے۔ لیکن آج وہ کراچی جو کہ روشنیوں کا شہر ہوتا تھا، اس 35 سالوں میں آج وہ اندھیروں میں ڈوب گیا، آج
वहाँ पर पीने का पानी नहीं है, आज वहाँ पर सर्विस का निजाम नहीं है, आज वहाँ पर कचरा को उठाने वाला नहीं है, आज वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का कोई निजाम नहीं है। ए मेरे बलूचिस्तान के नौजवानों, ए मेरे भाइयों, ए मेरे नाराज भाइयों, मैं तुम्हें आवाज लगाकर कहता हूँ, देखो हमने इस रॉ के तसल्लुत के खिलाफ कराची हैदराबाद में जिहाद किया, लेकिन इस जिहाद को क्लाशनकोव से नहीं किया। हमने इस क्लाशनकोव कल्चर को क्लाशनकोव के बगैर कराची में खत्म करके दिखाया, जहाँ पर रोजाना 20 से 22 लोग रोजाना मरते थे, आज वहाँ पर एक भी माँ का बेटा नहीं मर रहा। आज कोई नौजवान लापता नहीं हो रहा, आज जेलों में लोग नहीं ठूसे जा रहे, आज नौजवान अपने घर को छोड़कर भागता नहीं फिर रहा। ऐ मेरे बलूचिस्तान के नौजवानों, ये रियासत हमारी है, ये मुल्क हमारा है। हाँ तुम्हें गिला है, हाँ तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, हाँ तुम नाराज हो, लेकिन इसका ये रास्ता नहीं है। हमने इस पाकिस्तान में एक नया मॉडल पेश किया है, पाक सरजमीन पार्टी उसके नौजवानों ने एक नया मॉडल पेश किया है। अपनी ज्यादतियों का इज़ाला करने के लिए हमने हथियार नहीं उठाए, हमने जुल्म को जुल्म से खत्म करने की कोशिश नहीं की, हमने मजलूम बनकर जिद्दोजहद की है, अल्लाह को पुकारा है, भाइयों को भाइयों से जोड़ा है। आज रब का करम है, रब ने रॉ के दहशतगर्दों की ताकत सिंध में छीन ली है, कराची में छीन ली है। आज हम उस रास्ते पे चल पड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला जहां से सिंध में, शहरी इलाकों में, कई इलाकों में और पूरे पाकिस्तान में हुकूक मिलेंगे, मैं तुम्हें भी दावत देता हूँ। ऐ नौजवानों, ऐ बलूचिस्तान के नौजवानों, आओ ये रास्ता इख्तियार करें, आओ दुश्मन की चालों से बाहर निकले, आओ अपने लोगों से अगर हमें शिकायत भी है, हम सामने बैठकर उनसे आंखों में आंखें डालकर अपनी शिकायतों का इजहार करें, अमन के साथ आवाज लगाएं, अमन के साथ। आज मुल्क के सियासतदानों और हुक्मरानों को हमारे नौजवानों के दरमियान, बलूचिस्तान के नौजवानों के दरमियान और रियासत के दरमियान बैठकर बात करवानी चाहिए थी, बैठकर डायलॉग करवाने चाहिए थे, लेकिन हमने चंद हफ्तों पहले इसी कोयटा में, इसी जगह पे हमने देखा कि पूरे मुल्क भर से बड़े लीडर आए और उन्होंने आकर इस देश पर लापता लोगों के घर वालों को जमा किया। उन लापता नौजवानों के घर वालों के कंधों पर बंदूक रखकर उन्होंने रियासत को शेम के नारे लगाए। मैं आज उनके ऊपर शेम के नारे लगाता हूं। मैं किसी लापता नौजवान की मां, बहन, बेटी या भाई को यहां लेकर नहीं आया। आज कराची में 500 से ज्यादा लापता माओ बहनों के उनके भाई, उनके बच्चे उनके हवाले हुए। मैंने एक के साथ भी तस्वीर नहीं खिंचाई, मैंने एक को भी अपनी नफरत के इजहार का जरिया नहीं बनाया। मैंने देखा है कि इसी जगह पे खड़े होकर रियासत के इदारों के खिलाफ शेर के नारे लगाए गए। लापता बलोच नौजवानों के घर वालों को खड़ा करके मैं सवाल करता हूं उन लोगों से जिन्होंने ये नारे लगाए, क्या उनके शेर के नारे लगाने से क्या वो लापता नौजवान घरों में वापस आ गए? क्या माओ को उनके बच्चे मिल गए? क्या बहनों को उनके भाई मिल गए? नहीं, वो शेर के नारे लगाकर सियासत करके अपने महलों में जाकर सो गए। आज उन नौजवानों के हालात किसी को नहीं पता। मैं ये काम नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि मुल्क के लोगों के दरमियान और रियासत के दरमियान
डायलॉग हो। मैं चाहता हूं कि जो फॉर्मूला जिससे अमन कराची में आया है उसी तरह से अमन इस बलूचिस्तान में भी आए, उसी तरह से अमन इस बलूचिस्तान में भी आए। मैं रियासत से कहता हूं, मैं हुक्मरानों से कहता हूं कि खुदा के वास्ते मुस्तफा कमाल हाथ जोड़कर कहता है आपसे, इन लापता लोगों की तरफ से, इन दुखी लोगों की तरफ से, इन माओं की तरफ से, इन बहनों की तरफ से कि एक दफा इन नौजवान बच्चों को माफ करो। रियासत माँ जैसी होती है, रियासत माँ जैसी होती है। रियासत अपने दिल को बड़ा करे, एक दफा इन नौजवानों को माफ करे, इनके ऊपर शफकत का हाथ रखे, खुदा की कसम, और इनकी महरूमियों को दूर रखे। कोई हथियार नहीं उठाएगा। ये इस मुल्क की तरक्की का ईंधन बनने वाले लोग हैं, इस मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं, कोई हथियार नहीं उठाएगा। खुदा के वास्ते रियासत अपने दिल को बड़ा करे और इन बच्चों को, इन माँ को जिनके बच्चे कहती है नहीं है, उनके हवाले उनके बच्चे किए जाएं। ए बलूचिस्तान के मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ए मेरे नौजवानों, आज मेरी माँ बहनों, आज पूरा पाकिस्तान हमें देख रहा है। तुमने आज जो ये तारीखी कारनामा अंजाम दिया है, हमारे पास ना आज वजीर आजम है, ना वजीर है, ना मेरे एमपी है, ना कोई काउंसलर है, लेकिन आज मेरे कारकुनों ने, बलूचिस्तान के कारकुनों और जिम्मेदारों ने एक घर में जाकर पीएसपी का पैगाम पहुंचाकर दावत दी है 5 सालों तक। और आज का ये मजमा ये बता रहा है कि आने वाला वक्त बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के तमाम अजला में आने वाला वक्त पाक सरजमीन पार्टी का है। अब जुल्म बहुत देर तक नहीं चलेगा, जुल्म की सियारात खत्म होने वाली है। अब हमें अपने सरदारों, अपने लीडरों की तरफ देखने के बजाय अपने दरमियान से क़यादत उभारनी है। पाक सरजमीन पार्टी ने गरीब मुतवस्सित तबके से उभर कर ये 5 सालों में जो कारनामा अंजाम दिया है, ये एक ऐसा मॉडल है, ये एक ऐसा नमूना है कि पूरा पाकिस्तान इसको फॉलो करेगा, पूरा पाकिस्तान इस पर तैयार होगा। जितने लोग यहाँ आए हैं, मेरी उन लोगों से गुजारिश है, जितने लोग यहाँ आए हैं, मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि यहां से जाने के बाद हमने आराम से नहीं बैठना है। यहां से जाने के बाद हमने एक बलूचिस्तान के चप्पे में बलूचिस्तान के रहने वालों को पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल का पैगाम पहुंचाना है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मेरी माँ बहनों, अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में इसीलिए भेजा है कि हम जहां रहते हैं उसके इर्द गिर्द जितना भी जुल्म है, उस जुल्म को हम अदल में बदलें। जुल्म पर खामोश रहने वाला जालिम का साथी है। पाक सरजमीन पार्टी और उसके कारकुनों ने जुल्म की सियारात में जुल्म जालिम के खिलाफ आवाज उठाई है। हमने जुल्म की सियारात में जालिम के खिलाफ जद्दोजहद की है। लेकिन याद रखो, हमने इस जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद करने में हमारे हाथों से खुदा न खास्ता कोई जुल्म ना हो, हमारे हाथों से कोई ज्यादती ना हो, इसलिए कि हमारा ये ईमान है कि ये दुनिया रब चला रहा है। तुम 100 वज़ीर आज़म इकट्ठे लगा दो, इस मुल्क में अगर रब ना चाहे तो इनके बराबर का काम नहीं कर सकता। अल्लाह को नाराज करके हम अपना भला नहीं कर सकते। ऐ मेरी माँ बहनों बुजुर्गों नौजवानों, कहीं हम अपने सुबह के और शाम के आमाल पर नजर डाल
डालें, कहीं हम अपने हुकूक के चक्कर में, कहीं हमारे हाथों से अपने ही भाई के खिलाफ कोई ज्यादती तो नहीं हो रही, कहीं हमसे कोई दुश्मन हुकूक के नाम पर किसी मासूम मजदूर को तो नहीं मरवा रहा, किसी गरीब आदमी को तो नहीं मरवा रहा, किसी शिया सुन्नी देवबंदी बरेली के नाम पर हमें आपस में तो नहीं लड़वा रहा। जब तक हम अपने ये काम सीधे नहीं करेंगे, जब तक हम अपने हाथों से खुदा ना खास्ता हमें किसी को नुकसान पहुंच रहा है, जब तक ये सिलसिला नहीं रुकेगा, रब की मदद नहीं आएगी, हम नस्लें इसी तरह से कटवाते चले जाएंगे, हमारे घरों में पानी नहीं आएगा, हमें दवा नहीं मिलेगी, हमें हुकूक नहीं मिलेंगे। हमें इन आमालों को देखना है, सारे इंसानों की फिक्र करनी है। इस शहर में शिया बरादरी के हजारा कम्युनिटी के लोगों का कत्ल होता है, दिन दिहाड़े मासूम लोगों का कत्ल होता है, वो रिवायती तौर पर बेचारे मजबूर हैं, अमन पसंद लोग हैं, अपनी लाशों को सर्दी में अपने प्यारों की लाशों को सड़कों पर रख के एहतजाज करते हैं कि कोई हुक्मरान आए, उनकी दादरसी करे और उनके बच जाने वाले बच्चों की जमानत दे कि आगे वो नहीं मारे जाएंगे। एक वाक़े के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, कब जाने ना जाने तब किस वक्त कौन मारा जाए किसी को नहीं पता, मारने वाला नहीं पकड़ा जा रहा। मैं ये मुतालबा करता हूँ कि इस सूबे में, इस शहर कोयटा से लेकर कराची तक की जो मेन शाहराह है, जहाँ पर तमाम बलूचिस्तान वाले सफर करते हैं, इसको फॉरेस्ट से बेशतर इसको डबल रोड बनाया जाए, इसको डुअल कैरिजवे बनाया जाए, आने जाने के रास्ते अलग किए जाए। रोजाना एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। आज सुई का मुकाम जहां से गैस दरियाफ्त हुई, पाकिस्तान भर को गैस दिया गया, वहां से आज 5% से ज्यादा उस मुकाम, उस इलाके में लोगों के घरों पर गैस नहीं है। 95% इलाका गैस से महरूम है, जहां से गैस निकलती है। ऐसे हालात रहेंगे तो इंडिया कलभूषण यादव को भेजेगा, इसलिए इंडिया दुश्मन कलभूषण यादव, एक कलभूषण यादव नहीं, कई कलभूषण यादव को भेजेगा। हमें ऐसे हालात खत्म करने हैं, ऐसी महरूमियों को खत्म करना है। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के किसी भी दूसरे हिस्से से कम मुहिब वतन नहीं है, सबसे ज्यादा मुहिब वतन है। हमें यहाँ की महरूमियों को खत्म करना पड़ेगा, हमें यहाँ की दुश्वारियों को खत्म करना पड़ेगा, और उसका कोई और तरीक़ेकार नहीं है। हमें मुकामी हुकूमतों का निजाम इतना मजबूत करना पड़ेगा कि लोग इन सरदार MPs, इन MNAs, वजीरों की तरफ देखना बंद कर दें। पानी के लिए, दवा के लिए, तालीम के लिए, रोजगार के लिए इनकी तरफ देखना बंद कर दें। पाक सरजमीन पार्टी ऐसी क़यादत निकालना चाहती है जो रातों रात असेंबलियों में जाकर अपनी वफादारी ना बदले, अपनी वफादारी ना बदले, एक रात में हुकूमतें ना बदले, एक रात में पूरी असेंबलियों को ना बदले पाक सरजमीन। और जब हम ये कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अपने अमल, अपने किरदार से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान चलाने वालों को हम ये कन्विंस कर सकेंगे कि हम पर रहम करें, हमें रिसोर्सेज दें, हमें हमारी बात सुने, हमारी पोस्टों पर हमारे सरकारी अफसरों को, यहीं के लोकल लोगों को जगह दें। ये काम इंशाअल्लाह ताला होने वाला है, होने जा रहा है। लेकिन हमने जो ये रास्ता, चंद लोगों ने जो ये रास्ता इख्तियार किया है, देखो मैंने तुम्हें कराची की मिसाल दी। हमें दुश्मन के हाथों में नहीं खेलना है साथियों। ऐ बलूचिस्तान के नौजवानों, हमें गुस्से में रियासत के खिलाफ नहीं खड़े होना है। चंद लोगों को दिखाकर दुश्मन पूरी रियासत से लड़वाना चाहता है, हमारी नस्लें तबाह बर्बाद हो गई, इसमें हमारा फायदा नहीं है। हमें अमन के साथ इस रियासत से अपने हुकूक लेने हैं, आखिरी सांसों तक इंशाअल्लाह ताला अपने हुकूक की जद्दोजहद जारी रखेंगे। बोलो तैयार हो, बोलो तैयार हो, सब बोलो तैयार हो। इंशाअल्लाह ताला आज ये पाक सरजमीन पार्टी
صرف 5 سال کی ہوئی ہے. یہ 5واں یوم تاسیس ہے. اے پاکستان اور بلوچستان کے اوپر حکمرانی کرنے والوں، پاکستان بلوچستان کے غریبوں کی محرومیوں کا، نوجوانوں کی محرومیوں کا فائدہ اٹھانے والوں اور ان بلوچستان کے نوجوانوں کو غلط راستہ دکھانے والوں اور ان کی وفاداریوں کو بار بار بیچنے والوں، سنو، ابھی پاک سرزمین پارٹی آج 5 سال کی ہوئی ہے. یہ 5واں یوم تاسیس ہے. 2 لوگوں سے شروع ہونے والی یہ جماعت ایک گھر سے نکل کر آج بلوچستان کے ایوب اسٹیڈیم میں عوام پر پھاٹے مارتا سمندر ہے. ایک لمحے کے لیے سوچو، اگلے 5 سالوں میں یہ پاک سرزمین پارٹی پاکستان کے ہر ایوان میں جو نمائندہ ہوگا وہ پاک سرزمین پارٹی کا ہوگا. پورے بلوچستان سے لے کر اسلام آباد تک انشاءاللہ تعالی 5 سالوں میں ہم یہاں تک پہنچ گئے. اگلے 5 سالوں میں پاکستان کے سارے ایوانوں میں، اسلام آباد کے ایوانوں میں، بلوچستان کے ایک کونسلر سے لے کر وزیر اعلیٰ تک پاک سرزمین پارٹی کا ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہمارے نوجوان اپنے سینوں کو آگے رکھ کر یہ میرے بلوچی، یہ میرے بلوچ، میرے پختون، یہ یہاں کے ہزارہ کے لوگ، یہاں کی دوسری کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ، یہ یہاں پہ جو لوگ پرانے سیٹلر ہیں، یہاں کا شیعہ، یہاں کا سنی، یہاں کا دیوبندی بریلوی، ہر زبان بولنے والا، ہر قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہر آدمی آج پاک سرزمین پارٹی کے ساتھ جڑ رہا ہے. اے بلوچستان کے میرے نوجوان بزرگوں، یاد رکھو، یہ سارے قبائل، یہ ان کے نام، یہ ان کی شناخت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں شناخت کے لیے بنائی ہے. جب ہم مریں گے تو قبر میں ہمارے ساتھ یہ شناخت نہیں جائے گی. ہم اگر کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں تو اللہ نے ہماری شناخت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی رکھی ہے. ہم حضور کی امت ہیں. قبر میں ہماری شناخت شیعہ سنی دیوبندی بریلوی نہیں ہے. قبر میں ہماری شناخت سندھی موجود پختون بلوچ نہیں ہے. قبر میں ہماری شناخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہے. ہم اس امت میں توڑ نہ پیدا کریں. ہم اس امت کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کریں اپنی سیاست میں. ہم اس امت کو جوڑنے کی بات کریں. ہم یہ کر کے رب کو راضی کریں گے. اگر ہم نے امت کو توڑنے کی بات کی تو اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوگا، راضی نہیں ہوگا. اور آج تک دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے کامیاب ہو سکے. تو آؤ اپنی شناخت دنیا کی رکھتے ہوئے آؤ سب کو جوڑنے کی بات کریں. آؤ اللہ کے رسول کی امت کو جوڑنے کی بات کریں. ہماری شناخت ہماری قبائل میں ہے، ہمارے گھروں میں ہے، ہمارے علاقوں میں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے. ہم آج اس صوبے کے، اس ملک کے ہندوؤں کی بھی قدر کریں. ہم یہاں کے عیسائیوں کی بھی قدر کریں. ہم یہاں کے غیر اسلامی لوگوں کی بھی قدر کریں. ہم مسلمان بھائیوں کے تمام مسالے کی قدر کریں. ہم تمام زبانیں بولنے والوں کی قدر کریں. ہم اس اللہ کے بندوں کی فکر کریں، اللہ کے رسول کی امت کے لوگوں کی فکر کریں. خدا کی قسم اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا، اللہ ہمارا وارث ہوگا، اللہ ہمارا رکھوالا ہوگا. آج پاک سرزمین پارٹی نے کلاشنکوف کے بغیر کراچی میں امن قائم کر کے دکھایا ہے. کیا روزانہ لوگ 22 لوگ مرتے تھے، بلوچستان میں بھی امن ہو جائے گا. اس سوچ کے ساتھ اس جہاد کو قائم کرو، اپنی کوشش کرو. خدا کی قسم پورے بلوچستان میں امن ہو جائے گا. بولو تیار ہو، بولو تیار ہو. بغیر ہتھیار کے جان لینے کی بات نہیں، جان بچانے کی سیاست کرنی ہے، اپنے بھائی کی فکر کرنی ہے. انشاءاللہ تعالی رب ہمارا حامی و ناصر ہوگا. آنے والا وقت پاک سرزمین پارٹی کا ہے. آنے والا وقت بلوچستان کے مظلوموں کا ہے. آنے والا وقت بلوچستان کے نوجوانوں کی حکمرانی کا ہے. ایک
चप्पे से गरीब मजदूर को, किसान को, गरीब नौजवान को, तालीम याफ्ता लोगों को इंशाअल्लाह ताला हम हक हुक्मरानी देंगे। हम इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म हाउस से हुक्मरानी निकाल कर और बलूचिस्तान के वज़ीर आला हाउस से हुक्मरानी निकाल कर बलूचिस्तान के पहाड़ों में पहुंचाएंगे, बलूचिस्तान के रेगिस्तानों में पहुंचाएंगे, बलूचिस्तान की गलियों में पहुंचाएंगे, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में पहुंचाएंगे। ये पाक सरजमीन पार्टी का मंशूर है, ये पाक सरजमीन पार्टी करना चाहती है। मैं आखिर में ए मेरे बलूचिस्तान के कारकुनों, पीएसपी के कारकुनों, ए मेरे जिम्मेदारों, मैं किस तरह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, मैं किस तरह से तुम्हारी मेहनत पे, तुम्हारे इस जहाद को खराज तहसीन पेश करूं। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं मुस्तफा कमाल के पास कुछ नहीं है देने के लिए। मैं जिस आसरे पे, जिस रब से इनाम लेने के लिए मैं और अनीस खानी ने इस जहाद को शुरू किया था, जहां पर सच बोलने की सबसे छोटी सजा मौत थी, मैं उसी रब को आवाज देकर कहना चाहता हूं, ऐ मेरे रब, ये मेरे बलूचिस्तान के नौजवानों ने, ये पाक सरजमीन पार्टी के जिम्मेदारों और कारकुनों ने किसी वजीर के लिए नहीं, किसी वजीर आज़म के लिए नहीं, किसी पैसे के लिए नहीं, तेरी रजा के लिए, तेरी मखलूक के दिनों में के हालात को बेहतर करने के लिए 5 सालों से पेट पर पत्थर बांध के लोगों के ताने सुनकर एक एक बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे में इंसानों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, गरीब की दादासी कर रहे हैं। तू इनको इनाम दे, तू इनका वाली बन जा, वारिस बन जा, तू इस दुनिया में भी इनको इनाम दे, इनको इख्तियार दे, इनको ताकत दे, और मरने के बाद इनकी कब्रों को रोशन कर, इनके बच्चों का रखवाला बन जा, और क़यामत के दिन आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमें सुरखरू कर कि हम उसकी उम्मत को जोड़ने के लिए हमने सारे तफरीक को खत्म करके हमने भाइयों को भाइयों से मिलाया। आज जो लोग कराची में मुझे ताने देते थे, ऐ मुस्तफा कमाल, तू कराची का एक इंसान है, तू उर्दू बोलने वाला है, तेरी कोई पाकिस्तान में जुबान बोलने वाला तेरी बात नहीं सुनेगा। ऐ नाथ देश लोगों, आज मेरे बलूचिस्तान के लोगों को यहाँ जमा हुआ देखो, ये मजमा मुस्तफा कमाल और उसके साथियों को आज ये बता रहा है कि अल्लाह के देर है, अंधेर नहीं है। मेरा रब दिलों को फेरता है। उसने मुस्तफा कमाल की बात पाकिस्तान के एक बच्चे के दिल में डाल दी है। अब आने वाला वक्त पाक सरजमीन पार्टी का है। खुश रहो, आबाद रहो। मैंने जानबूझकर किसी का नाम नहीं लिया है। ऐ मेरे साथियों, तुम्हें मैं जानता हूँ। ऐ मेरे कारकुनों बलूचिस्तान के, मेरे नौजवानों, मेरे जिम्मेदारों, काश मैं यहाँ पर खड़े होकर एक तेरी माँ बहन बेटी जिसने इस जलसे को सजाने के लिए काम किया, मैं उसका नाम लेकर तुम्हें पुकारता, तुम्हें खराज तहसीन पेश कर सकता, लेकिन सबको इज्तिमाई तौर पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इस जलसे में रुकावट डालने वाले जो हुक्मरान है, मैं उनको माफ करता हूँ। कोई गिला नहीं, कोई गिला नहीं, कोई गिला नहीं है, कोई गिला नहीं है। अगर हक और सच के रास्ते में रुकावटें नहीं आए तो फिर वो हक का रास्ता ही नहीं है। तुम्हारी रुकावट डालने से मेरे और मेरे साथियों को पता चल गया कि हमारा रास्ता हक का रास्ता है, हमारा रास्ता सच का रास्ता है। तुम भी इस रास्ते पे आ जाओ। तुम भी इस रास्ते पे आ जाओ। ऐसा ना हो कि देर हो जाए, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, इसलिए कि जुल्म की सियारात खत्म होने वाली है और सूरज तुलू होने वाला है हक का, इंसाफ का, मजलूमों का। पाकिस्तान, बलूचिस्तान जिंदाबाद। है
Malaka!